Hello. Okay, in the last lecture, we have seen different type of scaling, full scaling, full and voltage scaling. वहाँ पर अब जब हम लोग डिसएडवांटेज डिस्कस कर रहे थे तो वी डिस्कस अबाउट सम इफेक्ट्स, स्मॉल चैनल इफेक्ट और शॉर्ट चैनल इफेक्ट्स जो कि स्केलिंग की वजह से हो जाते हैं. तो उन इफेक्ट्स को देखते हैं. इनको इन ओवरऑल इट इज दे आर नोन एज स्मॉल ज्योमेट्री इफेक्ट्स. ओके, so MOSFET size are shrunk which create a problem in device characteristic which are small geometry effects and are classified as short channel effects and small channel effects. जैसे ही हम लोग MOSFET का साइज रिड्यूस करते हैं तो कुछ डिवाइस के कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आते हैं. इनको ब्रॉडली दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है. दैट इज शॉर्ट चैनल इफेक्ट एंड स्मॉल चैनल इफेक्ट. लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल सी शॉर्ट चैनल इफेक्ट. इफ द लेंथ ऑफ द चैनल, अगर चैनल की लेंथ जो है वो ड्रेन और सोर्स डेप्थ के कंपैरेबल है, मतलब उसका साइज चैनल की लेंथ और ड्रेन और सोर्स का डेप्थ ऑलमोस्ट सेम है, तो ऐसे चैनल्स को हम शॉर्ट चैनल्स कहते हैं. और इसकी वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आता है किसी मॉसफेट के, तो दैट इज़ नोन एज शॉर्ट चैनल इफेक्ट्स. और इसको कभी कभार हम लोग डीप सब माइक्रोन DSM इश्यूज भी कहते हैं. ओके, नाउ जैसे कि हम लोगों ने जब करंट इक्वेशंस और वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज सब ड्राइव किया था तो वहाँ पर हम लोगों ने इफेक्टिव लेंथ की बात की थी. तो वन वी आर इन द सैचुरेशन रीजन ऑफ मॉसफेट, जहाँ पर पिंच ऑफ हो जाता है, ठीक है. तो सैचुरेशन रीजन जब होता है तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द चैनल गेट रिड्यूस which was given by L dash equals to L minus delta L, where delta L is the strength of the pinch off region. Okay, तो pinch off region का वो अगर delta L है तो effective length क्या होगी, जो original length थी minus delta L, minus delta L. Okay, minus delta L. The this reduction of in change length delta L is basically the function of drain to source voltage. ये VDS पे डिपेंड करता है, ठीक है. तो डेल्टा L आपका जो पिंच ऑफ रीजन है दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन VDS, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज. ओके, तो हम लोग ये नोटिस किया कि लॉन्ग चैनल्स हैं तो वहाँ पर इसका रोल, इसका सिग्निफिकेंस कम है, तो वहाँ पर हम उसको इग्नोर करते हैं. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्ट चैनल्स तो इसका इफेक्ट काफ़ी देखने को मिलता है. तो वी कंसिडर दिस केस इन दिस रिडक्शन इज सिग्निफिकेंट कंपेयर टू द फिजिकल चैनल लेंथ ऑफ द डिवाइस. देयरफॉर फॉर द शॉर्ट चैनल केस अगर हम करंट एक्सप्रेशन निकालें जो हम लोगों ने सैचुरेशन करंट के लिए निकाली थी, ID SAT, which was nothing but mu n Cox W by 2L into VGS minus VT whole square. Okay. तो अगर यहाँ पर 2L की जगह पर मैं 2L dash रखूँ, the effective length, if I am putting 2L dash over here, so L dash की जगह पर L minus delta L हो जाएगा. If I multiply and divide this equation by L and delta L, you can see that the new equation is mu n Cox W by 2L into VGS minus VT square into L upon L minus delta L. And again in the bracket part I have modified or make it more simpler, 1 minus delta L by L inverse. Okay. Now, as delta L is very much smaller than L, we can by binomial expansion we can ignore the higher degree values. Then the bracket part is converted into 1 plus delta L by L. This delta L by L is given by lambda VDS. The ratios depend upon the drain to source voltage.
sorry, drain to source voltage, and it very almost linear to that. Therefore, lambda parameter is used over here, which is known as an empirical model parameter and is known as channel length modulation coefficient. Now, due to this channel length modulation, the saturation drain current slowly increases with VDS. Okay. Normally, in the ideal condition, we say that we at saturation level, आप VDS बढ़ाते चले जाए, आपका I sat constant रहेगा. But in a practical way, in the practical case, it increases. तो normally standard graph में हल्का हल्का increment हम लोग दिखाते भी. Okay. So this is that increment in the length is due to the increment in the drain current is due to the this channel length modulation. Okay. So next. Okay, the next short channel effect is threshold voltage lowering. अब शॉर्ट चैनल मॉसफेट में एक और देखा गया कि वहाँ पर थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है. जो हम लोग कैलकुलेशन की थी वीटी की, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है. कैसे होती है? क्योंकि ड्यू टू द इंक्रीज, इसकी वजह इंक्रीज इन द ड्रेन वोल्टेज, जिसको हम लोग in other words we say that it's a drain induced barrier lowering. ठीक है, DIBL इसको भी कहा जाता है. एक्चुअली जब हम लोग थ्रेशोल्ड वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे थे, उस वक्त हम ये अज्यूम कर रहे थे कि जो डिप्लीशन रीजन आपका क्रिएट हो रहा है आउटसाइड लेयर के नीचे, दैट इज ओनली ड्यू टू द अप्लाइड गेट वोल्टेज. बट एक्चुअली इट इज़ नॉट. But it is actually it is not. It is जब आप ड्रेन वोल्टेज अप्लाई करते हैं, यानी अप्लाई ड्रेन वोल्टेज, तो एट द जो ड्रेन एंड है वहाँ पर डिप्लीशन रीजन जो क्रिएट हो रही होती है, वो ड्रेन वोल्टेज की वजह से होती है. Therefore the you can say that जो रिक्वायर्ड गेट वोल्टेज है वो रिड्यूस हो गई, क्योंकि कुछ पार्ट जो डिप्लीशन रीजन का वो ड्रेन ने ऑलरेडी वहाँ पर उसको क्रिएट कर दिया. Therefore, we can say that gate voltage is reduced by, which we consider in the ideal case. Now, thus the gate voltage reduced होगी, yeah, you can say that finally the threshold voltage is reduced, which with the increase in the drain to source voltage. ऐसे जैसे आप VDS बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे threshold voltage reduce होती चली जाएगी. ओके, अगेन लॉन्ग चैनल में ये इफेक्ट उतना कंसिडरेबल नहीं है, बिकॉज वहाँ पर जो डिप्लीशन रीजन एट द ड्रेन एंड बन रही होती है, एट द ड्रेन एंड जो क्रिएट हो रही होती है, दैट इज नेग्लिजिबल इन कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द चैनल. बट इन द शॉर्ट चैनल केस इट इज़ अ अप्रिशिएबल वैल्यू. तो वहाँ पर ये इफेक्ट देखने को मिलता है, वहाँ पर जो VT की वैल्यू लोवर्ड हो जाती है. Now the next short channel effect is punch through. ये बड़ा कॉमन सा है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है इसका कि as you are increasing the drain source voltage, VD आप जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, तो एक एक्सटेंट ऐसा आएगा कि the depletion layer will be created from drain to source. पूरा चैनल आपको पास मिल जाएगा and there will be a short current flowing through it, and that will lead to the permanent damage of the device. तो उसकी वजह से पूरा ID की वैल्यू एकदम से शार्पली राइज करती है, एंड दैट इज नोन एज पंच थ्रू. ओके, the next short channel effect is sub-threshold conduction. अब जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि when VGS is less than VT, गेट टू सोर्स वोल्टेज अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से नीचे है तो उसको हम लोग कट ऑफ रीजन कहते हैं. ठीक है, आइडियली इट शुड बी ज़ीरो, बट नहीं, वहाँ पर थोड़ी बहुत करंट फ्लो होती है ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर्स. जैसे कि सेकंड पॉइंट बता भी रहा है कि इफ VGS is less than VT, okay, if it is VGS is less than VT,
the magnetic area start accumulating near the oxide semiconductor interface and channel is partially created between the source and drain. ठीक है, एक सेमीकंडक्टर लेयर बहुत पार्शल से तैयार होती है, जिसको हम लोग वीक इन्वर्जन भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज वीक इन्वर्जन. ओके, तो इसकी वजह से आपका माइन्यूट सी ड्रेन करंट फ्लो होती है. ओके, अंडर दिस वीक इन्वर्जन कंडीशन अ स्मॉल करंट फ्लोज थ्रू द चैनल विच इज़ नोन एज सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन. यही जो स्मॉल करंट जो फ्लो हो रही है वीक इन्वर्जन में, इसी को हम लोग सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन कहते हैं. और इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं आई डी इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर क्यू वी जी एस माइनस वी टी अपॉन नीटा के टी. ओके, दिस इज अ स्टैंडर्ड डायोड इक्वेशन जो हम लोग रिवर्स सैचुरेशन करंट के लिए निकालते हैं. बिल्कुल कुछ वैसी ही है. ठीक है, यहाँ पर वी टी इज़ नथिंग बट टेम्परेचर इक्विवेलेंट ऑफ करंट ऑफ वोल्टेज विच इज़ गिवन बाय वी टी के टी बाई क्यू विच इज़ 0.026 एट रूम टेम्परेचर. और नॉर्मली हम लोग एम्पिरिकल कांस्टेंट एन जो है 1.5 की वैल्यू लेते हैं. तो फ्रॉम दिस यू कैन गेट द सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन जो कि आपकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज से नीचे वोल्टेज पे जनरेट कर रही होती है या वैल्यू आ रही होती है. नाउ नॉर्मली डिजिटल सर्किट में हमारे लिए कट ऑफ मतलब ऑफ होता है एंड एट दैट स्टेट वी डजंट रिकॉर्ड एनी करंट. तो वी कैन से दैट कि सब थ्रेशोल्ड करंट इज नॉट डिजायरेबल इन डिजिटल सर्किट, rather lead to the leakage when the MOS device is supposed to be in the off condition. ठीक है, तो it's not a good for digital circuits. Thus, a device quality with respect to sub-threshold voltage is measured by measuring the rate of decrease in threshold current with VGS below VT. तो इसके लिए एक कहते हैं एक कर्व भी यूज़ होता है, दैट इज रेट ऑफ डिक्रीज इन थ्रेशोल्ड करंट विद VGS बिलो VT. VT के नीचे की वैल्यू VGS की होती है. उसमें सब थ्रेशोल्ड करंट कैसे वैरी करेगा, कैसे डिक्रीज करेगा, रेट ऑफ डिक्रीज. लेट अस सी, दिस इज क्वांटिफाइड बाय मेजरिंग द स्लोप ऑफ लॉग ऑफ ID. ड्रेन करंट का लॉगरिथमिक वर्सेस VGS का कर्व का जो स्लोप है वो यूज़ होता है इसके लिए. And a typical log ID versus VGS curve is shown in figure. It is a log curve, log of drain current versus. Okay, the slope of this log ID versus VGS को हम लोग अगर डेरिवेटिव फॉर्म में लिखें तो it will be d VGS upon d log ID, which is again can be written as in the log to the base e form and multiplied by ln10. ओके, इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं. और अगर हम जो प्रीवियस ID की इक्वेशन है जो ID इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर VGS और NVT होती है, उसको अगर अलग लॉग फॉर्म लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें तो ये होगा ln ID इक्वल्स टू ln I नॉट प्लस VGS अपॉन मीटा VT माइनस VT अपॉन मीटा VT. ना अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँ बहुत साइड, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा कुछ इस तरह से. ln I नॉट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, ऐसे ही VT बाई मीटा VT इज़ अगेन अ कांस्टेंट वैल्यू. तो वो दोनों तो चले जाएंगे एंड इधर आपको मिल जाएगा d ln ID, ओके, एंड d VGS बाय मीटा VT. Now from this d ln ID by d VGS is nothing but 1 upon मीटा VD. अगर इसको मैं प्रीवियस स्लोप वाली इक्वेशन है, तो प्रीवियस अगर आप चले जो एस वाली इक्वेशन है वहाँ उसको सब्सिट्यूट करें एंड फाइनली वी गेट सब थ्रेशोल्ड स्लोप कैन बी रिटन as which is मीटा VD log of k. So this is determining the rate of change of this is a subthreshold slope and is expressed in millivolt per decade. Normally for n equals to 1 for ideal transistor, subthreshold voltage slope जो निकल के आता है that is 60 millivolt per decade.
at room temperature. Okay, sorry. This indicates that there is a reduction of 60 millivolt in VGS lead to the decrement of subthreshold current by a factor of 10. अगर आप 60 millivolt VGS डिक्रीज करेंगे तो subthreshold current 10 times reduce होगी. Again, if for n is equal to 1.5, the value is calculated to near about 90 millivolt. If you are decreasing gate to source voltage by 90 millivolt, there is a subthreshold current drop by of 10. So this is how this curve is helpful in determining कि आप गेट टू सोर्स वोल्टेज कितना रिड्यूस करेंगे तो उसमें सबथ्रेशोल्ड करंट कितनी रिड्यूस होगी. ओके, तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सबथ्रेशोल्ड कंडक्शन. नाउ द नेक्स्ट शॉर्ट चैनल इफेक्ट इज वेलोसिटी सैचुरेशन. नॉर्मली हमको मालूम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स की होती है दैट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड. एक जनरल प्रिजम्पशन है कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती जाएगी. बट इसकी भी एक क्रिटिकल वैल्यू होती है. क्रिटिकल वैल्यू तक इलेक्ट्रिक फील्ड की क्रिटिकल वैल्यू तक ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज करती है. उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है. ठीक है, क्यों? इसका रीज़न ये है कि एक सर्टन स्टेज के बाद जो भी आपके चार्ज कैरियर्स हैं वो कोलाइड करने लगते हैं आपस में, एंड ड्यू टू दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिकम कांस्टेंट. सो दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी सैचुरेशन, विच इज़ नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी सैचुरेशन. तो एक टिपिकल जो वैल्यू है, क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड टिपिकल वैरीज फ्रॉम 5 वोल्ट per micrometer to 7.5 volt per micrometer. The power supply of voltage is 1 volt for a MOSFET with a channel length of 0.2 micrometer or lesser. SPSS, तो इसमें ऐसे केसेस में आपको वेलोसिटी सैचुरेशन इफेक्ट देखने को मिलेगा और कुछ कर्व इस तरह से होगा. आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की सर्टन क्रिटिकल वैल्यू जो आप यहाँ पर VGS इज इक्वल 10 to the power 5 यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड पर जाके सैचुरेट हो गई है. ठीक है, एक सर्टन क्रिटिकल वैल्यू पे. तो आफ्टर दैट देयर इट इज लीनियरली इंक्रीजिंग एज यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ ई. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है बट एक सर्टन स्टेज के बाद वो कॉन्स्टेंट हो जा रही है. दिस इज नोन एज वेलोसिटी सैचुरेशन. हम लोगों ने इनिशियली जब ड्रेन करंट की इक्वेशंस डिराइव कर रहे थे वहाँ डिराइव किया था कि ID इज नथिंग बट Q1 into W into द ड्रिफ्ट वेलोसिटी सैचुरेशन. ओके, तो वहाँ पर Q1 was a charge in the depleted channel, W was a width and the drift velocity was the velocity of the carriers. Now यहाँ पर अगर हम इसको और एक्सपेंड कर दें तो यहाँ पर ID की वैल्यू और Q1 की जगह पर आप रख सकते हैं C0x VD सेट. ठीक है, जो कि कैपेसिटेंस ऑफर्ड बाय द ऑक्साइड लेयर थी इनटू द सच VD सेट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल फाइनली गेटिंग द Q1 एंड एट द प्लेस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी यू कैन राइट VD सेट. ओके, okay, with this we have seen one part of the small geometry effect, that is short channel effect, and the next lecture we will see the small channel effects with 3 or 4 types. Okay, have a nice day.